Right, good evening. Thank you for joining us. While we've had lots of conversations, as we did yesterday, about the COVID vaccine, and that is going to be a focus issue for us, we're also going to keep an eye on the farmer protests. Remember, there's been extremely bad weather in Delhi, a cold wave and rain, and it's likely to rain over the next couple of days as well. It's 18 degrees and it drops to 11 degrees early morning with there you can see visuals. So basically, farmers who are out in the open are currently out in the open and also drenched in rain. 40 mm of rain was recorded in Delhi over the last 36 hours. An orange alert has been issued for January 4th and 5th. That's the rain that you're looking at on your screen. So it is bitterly cold. But we understand, as you can see, this is no longer a pleasant protest because it's now soaking wet and covered in mud. But the farmers, from what we understand, are adamant that the protest will in fact continue. A seventh round of talks were held between farmer representatives and the central government on the 4th of Jan. Again, no consensus. The talks fell through. The next round will happen on the 8th of January. The worrying thing for me so far is reports that 50 farmers have died till date who were part of the protest one way or the other. Representatives of 40 farmer unions were present at the meeting. We understand that the central government offered to talk about the issues point by point, an offer that the farmers have rejected, saying that their only demand is that the laws be repealed in their entirety. So as things stand right now, there's an impasse, and it doesn't seem like either side is going to roll back from that impasse. In other news, the Bharatiya Kisan Union leader said that they will continue this protest. There will also be a tractor march. There have also been some voices saying that they're going to march into Delhi over the next couple of days. Mamata Banerjee has backed the farmers and asked for the laws to be repealed. Kerala has passed laws internally within the state that basically don't allow for these laws to be implemented in the state. And while the agriculture minister has said that the meeting was inconclusive, we must also note the fact that while the last time there was a meeting, there was talk about how the farmers and the ministers shared the langar that was brought in. This time the farmers said that they will actually eat separately because there was undue sort of PR apparently that the government gained from the last time they shared a meal, which the farmers have not been happy about. So this is what we're doing this evening. We have, and like I have always been, people in my discussion column, in the chat columns keep saying, why don't you bring somebody from the government and have a two-way conversation? Well, Mr. Gopal Krishna Agarwal has been kind enough to join us today. He's a representative and a spokesperson of the BJP. Deepak Lamba, the General Secretary of Swaraj India, joins us from the other side of the farmers. So we're actually having a debate today, and hopefully our internet will hold up because Deepak is actually joining us from the protest site. Mr. Agarwal, I want to thank you for giving us your time. I really appreciate it. Mr. Deepak Lamba, I hope that you are warm and you have enough internet connection to last through this conversation. Let's take it piece by piece. Let me start with Deepak Lamba. Deepak Lamba, very quickly, I'm just going to ask point by point so we can keep our answers short. My first question to you is this. If the government is offering to discuss this point by point, point-wise, why are the farmers refusing to even discuss it at this point? At this rate, these protests will go on forever. Why aren't you willing to discuss it? पिछली मीटिंग में हमारी तरफ से 4 पॉइंट्स का एजेंडा गया था, तो उसमें जो पहले 2 पॉइंट के एजेंडे थे पिछली मीटिंग पे, उनमें शुरुआती दौर में बात हुई, लेकिन लास्ट तक तीसरे और चौथे एजेंडे पे बात होके बाद में मीटिंग खत्म हो गई और 4 जनवरी को दोबारा से मीटिंग के बुलाया गया। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट्स आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया, हमने तो एजेंडा पॉइंट में ही दिया था, लेकिन जो मेजर डिमांड थी, जैसा पहले भी हमने बताया कि वो कोई ऐसा नहीं था कि वो 1 2 3 4 4 डिमांडें थी और वो पूरी हो गई। वो कोई 50% का रेशियो नहीं था जो 3 और 4 पॉइंट्स को मान लिया गया। बेसिकली जो मेजर डिमांड थी वो पहली 2 ही थी, जिसमें कि 3 कानूनों को रद्द करने की बात थी, एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने की बात थी। तो मुद्दा यहाँ ये नहीं है कि किसान पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहे, हम बहुत पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो क्लियरिटी है वो बिल्कुल साफ है और ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ
अभी आपकी रिपोर्ट में भी था कि प्रोटेस्ट दिख रहा है, बैठे हैं फार्मर्स। ये प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम सड़कों पे ही बैठे हैं, ये प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए है कि हमारी मांगों को मांगा नहीं जा रहा। कोई नहीं चाह रहा है सड़कों पे बैठना इस मौसम में। लेकिन जो बात आपने कही कि कोल्ड है और बारिश हो रही है, ठीक है, आज भी बारिश हुई है और कल की भी संभावनाएं हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपको कि फार्मर्स इस बारिश से उन पे कोई ज्यादा असर अभी पड़ नहीं रहा है। यदि मेरे को देखें तो ये आंदोलन, मेरे से यदि आप पूछें तो ये आंदोलन के लिए बल्कि अच्छा है। हमारे जो किसान साथी अपने गांव में खेत में रुके हुए थे, जिन्होंने फसल में अभी पानी देना था, वो पानी कुदरत ने, नेचर ने अपने आप उनके खेतों में दे दिया है। अब वो पूरी तरह से 15 दिन के लिए, अगले 15 दिन के लिए फ्री हैं। तो वो हमारे प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और प्रोटेस्ट धीरे धीरे और बढ़ेगा। और जहाँ तक पॉइंट टू पॉइंट की बात है, हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट थे। 4 जनवरी को जो अभी बात हुई है, आपको उसमें मैं उस मीटिंग्स की कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। शुरुआती दौर में ही हमारे लीडर्स ने ये बोल दिया कि हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करना चाहते हैं। तो सरकार की तरफ से लास्ट में ये पूछा गया कि क्या सचमुच में आप इन कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं? तो ये जो सीरियसनेस है, जो सीरियसनेस फार्मर्स की तरफ से तो दिखाई देती है, लेकिन सरकार की तरफ से ये सीरियसनेस हमें दिखाई नहीं दे रही। हम 7 दौर की मीटिंग्स, बातचीत हम कर चुके हैं और गवर्नमेंट को अभी तक यही पता नहीं लगा है कि सच में किसान क्या चाहता है। हर बार हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे किसान नेता जाते हैं और जाते ही पहली बात ये करते हैं कि आप जो कानूनी रूप से ये बताएं कि इन कानूनों को रद्द कैसे करेंगे, इनकी क्रिया विधि क्या होगी। जैसे मैंने आपके पिछले शो में आपको 4 एजेंडे बताए थे। जो 4 एजेंडे थे वो इस तरह से थे: किसान कानूनों को रद्द करने की क्रियाविधि, एमएसपी को लीगल अधिकार बनाने की प्रक्रिया। तो ये जो 2 पॉइंट थे जो पिछली मीटिंग में डिस्कस हुए, उस पे आपस में आर्ग्यूमेंट हुआ। उसके बाद तीसरे और चौथे पॉइंट का डिस्कशन हुआ। अभी तो मैं पिछले शोज में हमने बात की थी कि ये कहावत जो है ये उल्टी हो गई थी कि पूंछ निकल गई हाथी रह गया, लेकिन अभी तो कहावत और बढ़ गई है। अब ये पता नहीं लग पा रहा वो हाथी था कि गधा था, क्योंकि लिखित में तो कुछ हुआ नहीं कि वो जो तीसरा और चौथा पॉइंट था उस पर भी क्या डिस्कशन हुआ है, क्या आया है। तो अभी काफी अनक्लियरिटी है, लेकिन वो किसानों की तरफ से नहीं है, वो गवर्नमेंट की तरफ से है। मंत्री जो समिति बनाई गई है उसकी तरफ से है। तो हम बिल्कुल क्लियर हैं और हमने आगे के कुछ कार्यक्रम भी अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता दिए हैं। और मैं उनका जिक्र थोड़ा यहाँ भी करना चाहूँगा। हमारा एक ट्रैक्टर मार्च है जो कि 7 जनवरी को जो केएमपी है दिल्ली के चारों तरफ, उस पे होगा। उस पे 5 पॉइंट से ट्रैक्टर आएंगे और मार्च करेंगे। उसके बाद तारीख तक हमने देश जागृति अभियान, जिसमें कि हम देश के हर कोने में जाएंगे और ये कानूनों के बारे में पूरे देश को बताएंगे और लोगों में ये जागृति लाने का काम करेंगे। एक लोकल प्रोग्राम हमारे हरियाणा का है। 9 जनवरी को हमारे सर छोटू राम जी की पुण्यतिथि होती है। उस दिन से हम अपने गांव में जाएंगे और गांव में ये ऐलान करने वाले हैं कि हर घर से जरूर बंदा इस आंदोलन में पहुंचे और महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। 18 जनवरी को हम इन्हें महिला किसान दिवस के रूप में हम मनाने वाले हैं। आपको पता है कि 50% से ज़्यादा जो काम करने वाले खेतों में काम करने वाले हैं उसमें महिलाओं का योगदान रहता है। तो 18 जनवरी हम महिला किसान दिवस के रूप में इसको रेखांकित करेंगे। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। उस दिन हम आज़ाद किसान दिवस मनाएंगे और गवर्नमेंट ऑफिसेज और विशेषकर गवर्नर हाउसेज के बाहर प्रदर्शन करेंगे। और आपको एक जो मेजर प्रोग्राम है 26 जनवरी को आधिकारिक परेड के बाद हम किसान अपनी परेड दिल्ली में करेंगे। तो ये कुछ कार्यक्रम हैं जो कि हमने आंदोलन में चॉक आउट किए हुए हैं और क्लियरिटी हमारी तरफ से बिल्कुल साफ है। और जो क्लियरिटी की जो संभावना या जो कमी हमें दिखाई दे रही है कि कहाँ से आना चाहिए, वो गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल अग्रवाल जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। क्या आप हमें बता सकते हैं कि दीपक लांबा का कहना है कि सरकार सीरियस नहीं है, सरकार को अभी तक समझ में नहीं आया कि किसान चाहते क्या है। इसका आपका क्या रिस्पॉन्स है? अगर ऐसा होता कि सरकार समझ में नहीं आया तो किसानों ने तो कोई रिटर्न में ऐसा चीज दी नहीं है इन कानूनों को लेके। केवल ये दिया है हमें कि इन तीनों कानूनों को वापस लो, ये काले कानून है। लेकिन फिर भी सरकार ने पहले भी मीटिंग में 10 पॉइंट में कई जो किसानों की बातचीत से हमें समझ आया था उसके हिसाब से अमेंडमेंट के पॉइंट्स इसमें लिखे हुए। हमें जो समझ आ रहा है मैं फिर बता दूं, एक तो किसानों को एमएसपी की
चिंता है कि इन कानूनों के आने के बाद सरकार एमएसपी को खत्म कर देगी। उसके लिए सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो एश्योरेंस चाहिए, जिस तरह की चाहिए, हम तो ये नहीं मानते कि इन कानूनों का एमएसपी से सीधा संबंध है, लेकिन फिर भी आपको जो चाहिए उस चीज के लिए हम तैयार हैं। दूसरी बात है एपीएमसी को लेके, हमें समझ आ रहा है कि उन्हें लग रहा है था कि एपीएमसी का जो प्राइवेट मंडी आएंगी तो किसानों, ये जो सरकारी मंडियां हैं जिसका कारण उनको लाभ होता है एमएसपी का, उसपे से प्रोक्योरमेंट होता है, वह खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए सरकार ने जो प्राइवेट मंडियां हैं उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का भी ऑप्शन दे दिया, क्योंकि प्रदेश सरकारों को उसका रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, परमिशन, फीस स्ट्रक्चर सबका स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन दे दिया। तो अगर पंजाब के, हरियाणा के किसानों को लगता है कि हमें प्राइवेट मंडियां नहीं चाहिए तो वो वहां पे जो पंजाब और राजस्थान में उसके लिए परमिशन ना दे। एपीएमसी को हम खत्म नहीं कर रहे, लेकिन प्राइवेट मंडियों को ला रहे हैं, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए भी लिख के दे दिया। तीसरा, उन्हें प्रॉब्लम था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके कि उनकी जमीन चली जाएगी, उसको एक्ट में लिखने के लिए तैयार हो गए। चौथा, उनको ये प्रॉब्लम थी कि हमने नया वैकल्पिक व्यवस्था न्याय दिलवाने के लिए की थी एग्रीकल्चर टू सेल में, कि एसडीएम के पास चले जाएं। हमें लगा था कि लोकल है, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, किसानों को कहाँ कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो इसके लिए उनको एसडीएम की व्यवस्था की। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तो कोर्ट की व्यवस्था चाहिए। उसके लिए भी सरकार ने दे दिया कि हम अमेंडमेंट करके बदलाव के लिए तैयार हैं। तो यह पांचों छह बातें पूरी स्पष्ट रूप से सरकार बोल चुकी है। अब हमें अब नहीं समझ आ रहा, फिर उन्होंने दो बातें और कही, पराली की बात थी, और जिसको कि अभी तो पराली और इलेक्ट्रिसिटी का अमेंडमेंट ना बिल में है कोई बात, ना अभी लॉ बना है, नहीं तो केवल सरकार ने चर्चा की थी कि ऐसा एनवायरमेंट का, पराली का तो है, उसकी पेनल्टी का भी हटा दे को आश्वासन दे दिया कि हम कानून में बदलाव कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी का सब्सिडी हटाने का तो अभी कोई बात भी नहीं थी, कोई ऑर्डिनेंस भी नहीं था, तो भी सरकार ने कहा कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अब इतना सब होने के बाद भी ये कहना कि एक आशंका से कि सरकार एमएसपी हटा देगी, एपीएमसी खत्म हो जाएगी, इसलिए आप इन तीनों कानूनों को हटा दो, यह बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से यह बात आपके सामने कह रहा हूँ कि सरकार, हाँ, is the government at all open to withdrawing these three laws? क्या सरकार ये बात के लिए तैयार है तीन कानून को वापस लेने की? नहीं, सरकार की बात नहीं है। देखो, किसान भी, बहुत सारे संगठन हमारे पास आए हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनने लिखित में दिया है। केवल पंजाब और हरियाणा के किसान नहीं है, ये किसान तो हैं, लेकिन इनका ज्यादा फोकस पंजाब और हरियाणा में, जहाँ पे एपीएमसी और एमएसपी का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है कुछ सालों में। लेकिन जैसे बिहार में तो एपीएमसी है ही नहीं, केरला में भी नहीं है और एपीएमसी नहीं है, बहुत सारे प्रदेशों में एपीएमसी का स्ट्रक्चर ही नहीं है, मार्केट का, सरकारी मंडियों का। मिस्टर अग्रवाल, सॉरी, बिफोर आई टेक दिस बैक टू दीपक टू रिस्पॉन्ड, एक आम जनता होने के नाते एक डाउट है। अगर पंजाब और हरियाणा में एपीएमसी की बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अभी एक किसानों की डर है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगी ये कानून से, सरकार ये क्यों नहीं करती कि पंजाब और हरियाणा की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टडी करके वही इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी देश में लेके आ जाइए एपीएमसी का? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको मैं जवाब देना चाहता हूँ। आज मैंने इस इश्यू को, मेरा बिजनेस लाइन में बहुत डिटेल इंटरव्यू आया इन्हीं चीजों पे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेके। मैं आपको एक बात, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये 7,000 मंडियां हैं अभी पूरे देश में, 70 साल में पूरे देश में 7,000 मंडीज हैं ये एपीएमसी के अंतर्गत, जबकि कोई भी स्टडी कहता है 35,000 से 40,000, किसानों की स्टडीज हैं कि 35,000 से 40,000 मंडियां हमें गांव में पूरे चाहिए। अब सरकार ने 65 साल में, अब कांग्रेस का मैं नाम नहीं लूंगा, आप कहेंगे कि कांग्रेस 65 साल में और हमने 6 साल में 7,000 मंडियां अगर हमारी बन पाई है, तो अगली 35 से 40,000 मंडियां जो है, तो बाकी 28,000 से 30,000 जो मंडियां और बननी है, वो कितने, 70 साल या 200 साल लगेंगे। सरकार के पास रिसोर्सेज के लिमिटेशन है। प्राइवेट मंडियां इसलिए आवश्यक है ताकि मार्केट के जो रिक्वायरमेंट है
वह पूरी हो, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग नहीं, let me just make a point and then you can continue, otherwise बहुत लंबी बात होगी और मैं नहीं करूंगी आपसे। एक तो एपीएमसी जो होती है स्टेट सब्जेक्ट है, तो ना ये कांग्रेस की है ना ये पिछले 6 साल आपके पास है, ये तो हर एक राज्य सरकार की बात है कि वो एपीएमसी उनको लेके आना है। ये तो सही बात बोला आपने, 70 साल में 7,000 ही मंडीज आए, लेकिन आप लोग तो अभी इतने एफिशिएंट हो तो आप और कर सकते हैं। क्या आप ये नहीं कर सकते कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट साथ में मिलके ये 30,000 जो मंडी है वो बना दीजिए, लेकिन वही सेम रूल्स में जो अभी एपीएमसी में चालू। एपीएमसी को पूरी डिसमेंटल करने की क्या जरूरत है? एपीएमसी को पहली बात, फिर आप ये बात क्लियर कर लीजिए, हम एपीएमसी करंट स्ट्रक्चर को डिसमेंटल नहीं कर रहे। यही किसान बार बार ये जो लोग बोल रहे हैं, ये पॉलिटिशियन और किसान जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। हमने लिखित में दे दिया, कोई एपीएमसी वर्तमान 7,000 मंडियों को सरकार के साथ आश्वासन ले लीजिए कि हम किसी को खत्म नहीं करेंगे। आपको जो आश्वासन चाहिए, अगर हमारी बात पे विश्वास ही नहीं करना, कहना कि आप कुछ भी बोलते हो हम विश्वास भी करेंगे, फिर तो हमारे से बात करने की भी जरूरत क्या है? फिर तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अगर बात करना है तो हमें आप पे विश्वास करना पड़ेगा, आपको हमारी बात पे विश्वास करना पड़ेगा। और सरकार की गवर्नेंस की देखो, नहीं एक मिनट, आपने बोला कि एपीएमसी की बात है, जो एपीएमसी की स्ट्रक्चर है वह इसलिए सरकारों के पास पूरी नहीं बन सकती। अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें निकल के आती है, कल भी मेरे साथ किसान नेता थे अलग अलग क्षेत्र, उन्होंने बोला कि अब 5,800 का वो तिलहन या कोई प्रोडक्ट बता रहे थे कमोडिटी का, एमएसपी उसका 5,800 रुपया है प्राइस, और मार्केट में 2,400 में उनका बिक रहा है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें सब मिलके, प्रदेश सरकारें ही खरीदती है एमएसपी पे, 15% किसानों का प्रोड्यूस, देखो सच्चाई को सुनना चाहिए, हमारी कमी है तो भी हम बता रहे हैं, 15% कुल किसानों का प्रोड्यूस खरीदती है। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो सरकार को जो धान वगैरह जो अलग चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, वही केवल सरकार एमएसपी पे एपीएमसी के तहत खरीदती है। बाकी अभी 85% जो उपज है किसानों की, वह अभी भी खुले एपीएमसी के थ्रू सरकारों को, प्राइवेट लोगों को ही बेचना पड़ता है, और वह मोनोपोलिस्टिक है, वह मैनिपुलेटिव है। और वो खुद उसने बोला, किसान नेता ने, कि 2,400 रुपए में बिक रही है। और मैं आपको लिखित में दे देता हूं कि जो कंज्यूमर है वो वही 6,500 और 6,000 में खरीद रहा होगा। तो 2,400 में वो मंडी वाले मैनिपुलेटिव आड़तीये 2,400 में किसान से जबरदस्ती खरीद रहे हैं, और 6,000 और 6,500 और 6,200 में बेच रहे हैं। सरकार केवल 15% 5,800 में खरीद रही है। 85% का प्रॉफिट कौन खा रहा है? ये बताओ ना, हमें बता दो फिगर्स। 85% उपज का जो इतना कम मूल्य आपको मिल रहा है, सरकार तो नहीं खा रही, और वो आपके बड़े बड़े कॉर्पोरेट, हमने तो अभी नहीं घुसेड़ रखे। आप जो कहते हो कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को खोल, वो तो ऑलरेडी 85% आपके आड़तीये खा रहे हैं। उसका जवाब है आपके पास, दे दो। ओके, दीपक जी, गो अहेड। जी, गोपाल जी और ने ये एक चीज और, ये जो फीस है ना, जो फीस, जो ऑफिशियल फीस, नहीं एक चीज दीपक जी, एक सेकंड और दे दीजिए। ये ऑफिशियल फीस जो 8% 6% मंडियों की फीस है, उसके अलावा ये मुनाफाखोरी हो रही है। ये वो 6% भी 6,000 करोड़ केवल पंजाब में है जो एनुअल फीस जाती है आपके आड़तियों को। उसके अलावा ये करोड़ों रुपए खा रहे हैं मिडिलमैन, जो किसानों को नहीं मिल रहा और कंज्यूमर को महंगा माल मिल रहा है। ओके, सो अग्रवाल साहब, crores and crores of profit at the one, also a guarantee that the private will not come back to that. I have to give दीपक जी, आप बोलिए। जी, देखिए इसमें एक बात स्पष्ट है, बार बार गोपाल जी ने बात किया कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, उस पर विश्वास है नहीं है। तो देखिए, ये देश में जो भी चल रहा है, अभी हम जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, हम सब लोग सड़कों पे हैं,
नहीं आप इसके दीपक जी पीछे मेरी बात का जवाब दीजिए, ये आप मैं वही मिडिलमैन कर वाला रहा वो हूँ, मैं छोड़ वही दीजिए, वो बात मैं सुनिए विड्रॉ कर गोपाल जी, लेता हूँ उस आप बात को। आपने काफी सारे पॉइंट बोले हैं, मैं एक एक करके मेरा उसमें एक ही बताऊंगा। पॉइंट का जवाब दे दीजिए, जो मिडिलमैन नहीं नहीं, का जो उनको बोलने प्रॉफिट दीजिए। नहीं, मुझे हाँ बोलने ठीक है देंगे तो मैं बोल ठीक। पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं उससे भाग रहा हूँ, उसका जवाब मैं दूंगा। देखिए, ये जो कुछ भी शुरू हुआ है वो जो अनट्रूथफुल प्रोमिस थे वहां से सारी चीज शुरू होती है। अब आपने ये एक हमारे को वादा किया था कि 2022 में डबल इनकम कर देंगे, अब तक इनकम डबल नहीं हुई। फिर आप कहते हैं कि हमारे पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे, विश्वास की कमी है। आपने बोला कि कानून रद्द हो, ये बात बोली है सिर्फ हमारी तरफ से, सिर्फ इतना नहीं बोला है, आपको बकायदा डॉक्यूमेंट दिया है, उसमें सारे क्लोज वाइज ये बताया है कि ये कानून क्यों रद्द होने चाहिए, इनका ये कारण है। और अब बात आती है कि आपकी तरफ से प्रेजेंटेशन क्या आया। आपने कहा कि हमने पहली ही वार्ता में अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन दिया था। यदि कोई प्रेजेंटेशन उसको देख ले, दैट इज ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि बड़ा बड़ा नहीं खुला नहीं, करके रिटर्न 22 लेटर 23 दिया है 25 दीपक जी, पेजों ऐसे में बना गलत के दिया बात गया मत था। करो। वो रिटर्न ठीक है, वो हमारे पास कृषि आया, वो मंत्री हमारे का पास आया रिटर्न है। में 10 पॉइंट का नोटिफिकेशन प्रॉपर लेटर गया है, देखिए 10 पॉइंट क्या देखिए क्या सर, नहीं, उनको तैयार उनको है। बोलने दीजिए दीपक जी। नहीं देखो, गलत नहीं, गोपाल गलत बात अग्रवाल जी, नहीं, उनको देखिए बोलने नहीं ये दीजिए फिलहाल। गोपाल नहीं जी, वो नहीं देखो, गलत आप बात नहीं बोले, करें। आप बोले, मैंने नहीं वो देखो, सुना गलत सारा। आप अपनी बात कुछ भी कहिए, मेरी बात कहोगे और वो भी गलत कहोगे तो मैं आप अपनी कह रहे हो बात ही कह आपने रहा हूँ। पीपीटी दिया है, हाँ, पीपीटी क्या मैं वो वहां पीपीटी की दिखाया था। कॉपी भी दिखा सकता हूँ नहीं नहीं, आपको। पीपीटी दिखाया है, लेकिन हमने आपने रिटर्न में अपने नोट्स अच्छा अच्छा, आपने दिए एक हैं। मिनट, एक मिनट। ठीक है। गोपाल जी, let him finish speaking, then you can हाँ, revert, because otherwise we can't understand anything. देखिए अभी Deepak आपने ji, finish your एक बात बोल दी आपने कि एपीएमसी का जो है ना, वो उससे मंडियां खत्म नहीं होगी। हम कब कह रहे हैं कि 6 महीने में मंडियां खत्म होंगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों बाद आप देखिएगा कि ये मंडी जो व्यवस्था है, जिन राज्यों के किसानों के पास कुछ पैसा आता है, जो आप कह रहे हैं कि 15% ही हम एमएसपी पे खरीद पाते हैं, वो खरीद भी होनी बंद हो जाएगी। तीसरा आपने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन नहीं जाएगी। जमीन के ठीक है, आपने लिख दिया कि उसकी जमीन कहीं नहीं जा रही, लेकिन आपको एक मैं इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉ है, उसका एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिखा है कि यदि कोई कंपनी फार्मर की खेती पे करने के लिए जमीन पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करती है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ होती है, तो उस इन्वेस्टमेंट को कंपनी किसान से किसी मीन से वापस ले सकती है। तो ये मीन क्या होगा? किसान के पास कौन सी जायदाद है, किसान के पास जमीन है। तीसरा पॉइंट आपने बताया कि हमने एसडीएम को बदल के कोर्ट में कर दिया। देखिए, कोर्ट, एसडीएम, जहां भी दो कॉन्ट्रैक्ट करने वालों में के लेवल में डिफरेंस होगा, वहां पे जो आदमी के पास वकीलों की फौज है, जिसके पास तंत्र है, जिसकी सरकार में ये पैठ जो है, हम उसका चीज कॉन्ट्रैक्ट बदलने को पारित तैयार होगा। है, ये फिर उसी बात को पांचवा कह रहे हैं। पांचवा ये चीजें तो पांचवा हमने देखिए, एक्सेप्ट कर ली इनकी, नहीं मैं इनकी वही ये बता रहा हूँ प्रॉब्लम्स सर। एक्सेप्ट करके अमेंडमेंट के पराली लिए रिटर्न में पराली एश्योरेंस दे दिया है। आपकी ये देखिए, बातें दीपक जी हमने मान ली है, आप पराली सही की कह जो रहे हैं, बात थी, बिल्कुल पराली की आप जो सही बात कह रहे थी, हैं। पराली की जो बात थी, पराली की बात में ये था कि आपने 1 करोड़ रुपए 5 साल की सजा दी। आप कहते हैं तीसरा पॉइंट हमने मान लिया, दैट्स फाइन, ठीक है, मान लिया। बिल वाला हमने कभी नहीं कहा कि ये कानून बन गया है, हमने कहा कि ये पब्लिक डोमेन में है और आने वाले टाइम में कानून बनेगा। अब गोपाल जी ने खुद कहा कि मंडियों की कमी है, बहुत से राज्यों में मंडियां नहीं हैं। तो हम शुरुआत से कहते आए हैं कि मंडियों की व्यवस्था आपको सुधारनी होगी। भाई, आप ये नहीं कर सकते कि जो व्यवस्था कायम है, जिसको इतने किसानों के पक्ष में आते आते इतने साल में वो चीज डेवलप हुई, और आप आज जाके कहते हैं कि ये नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसको बदल नहीं देते हैं। ठीक है, तीसरा और आपने चाहिए। पॉइंट कहा कि जो जमाखोर हैं या बीच में जो अड़तियां हैं, वो खा जाते हैं, 85% मार्जिन ले जाते हैं। देखिए, हर सिस्टम में सरकार की भागीदारी है। आप कानून व्यवस्था कायम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई लूट रहा है, तो वो काम कायम करना भी आपका काम है। अब आप बात करें कि मंडी बोर्ड बने हुए हैं, उसमें आपने बहुत से अधिकारी लगा रखे हैं जिनका काम ही ये है, विजिलेंस विभाग है। अब आप एक एक ही कंडीशन पे एक ही बार में आप ये कहते हैं कि वो व्यवस्था तो ठीक नहीं है, हम उस व्यवस्था को खत्म कर देते हैं, नई व्यवस्था ले आएंगे। अब जब आप ये कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है, विश्वास ना होने के बहुत से कारण हैं सर। एक तो मैंने आपको बताया, जितने भी प्रोमिस हुए वो कभी पूरे नहीं होते, है ना? पूरे नहीं होते तो उससे क्या होता है कि आप बोल के चले जाते हैं और कुछ सालों बाद कह देते हैं ये तो चुनावी जुमला था। अब ये जो आय दुगनी करने का था, मैं गोपाल जी से सीधा पूछना चाहूंगा कि जो 2016 में आपने घोषणा की, 2014 से उस पे काम किया कि किसानों की आय को हम दुगना कर देंगे, तो कोई बता सकते हैं आपकी क्या डाटा है? आज की डेट में किसान की आय कितनी बढ़ी है? और देश में बहुत से उद्योगपतियों की आय देखिए आप कितनी कितनी बढ़ रही है। तो आप
खेती के केस में यदि मेरे को कुछ बता पाए कि आपने कितनी आय बढ़ा दी, तो मैं बल्कि शुक्रगुजार रहूंगा गोपाल जी का कि वो बताएं कि डबल करने 2022 में हम डबल जा रहे हैं। आज की डेट में आप कितने पॉइंट पे हैं, कितने प्रतिशत आपने इंक्रीज कर दिया है। Okay. मुनाफाखोरी रोकना, जमाखोरी रोकना सरकार और सरकारी तंत्र का काम है, किसान का काम नहीं है। ये मैं कह के अपनी बात को समेट। गोपाल जी, देखिए, इन्होंने उस आड़ती वाली बात का, जो प्रॉफिट का, कोई जवाब नहीं दिया। मेन मुद्दा वही था, उसको, उस स्ट्रक्चर को, उस मैनिपुलेशन को किसानों, देखो मैं कंज्यूमर जवाब को, दूंगी। एक हाँ मिनट, मुझे नहीं, एक गोपाल मिनट, जी, कंज्यूम नहीं, मैं एक जवाब मिनट, दूंगी। मेरी बात पूरी होने दी। अच्छा ठीक, कंज्यूमर को महंगा ही माल मिल रहा है ओके। और मिडिलमैन सस्ता। मैं कमोडिटी मार्केट का नेशनल प्रेसिडेंट भी रहा हूं, हमने एसोसिएशन बनाई थी, मुझे पता है कोई बाहर इन मंडियों के अलावा कोई खरीदने को 2400 रुपए में वो खरीदने को तैयार है किसानों को। हम अगर 2800 और 3000 में भी खरीदना चाहेंगे, कोई को वो मिडिलमैन नहीं खरीदने देते। और लीगल स्ट्रक्चर ऐसा है एपीएमसी का कि आप उन मंडियों के बाहर कमोडिटी को नहीं खरीद सकते किसानों को। कहीं भी मोनोपोली में कई देश चलता है क्या? और मोनोपोली भी ऐसे मैनिपुलेटर्स के बीच हाथ में आप फंसे हुए हो, क्यों आप उनके पीछे? मतलब आपको उस मंडी में बेचना है, उन लोगों को बेचना है, तो बेचिए ना, किसने मना किया है? एक वैकल्पिक मंडी, अगर आपको चॉइस मिलती है तो चॉइस कहां पे खराब है? दूसरी बात फेजी, एक मैं बहुत और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था, ये बेसिक बात है, आप समझिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी राइट टू सेंटर इकोनॉमिक पॉलिसी में विश्वास रखती है। yes. हम इस बात पे भी विश्वास रखते हैं कि मार्केट मैकेनिज्म जो है वह एफिशिएंसी लाता है प्राइस डिस्कवरी में। मुझे पता नहीं किसानों को मैं कैसे समझाऊं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है। डेमोक्रेसी में प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के लिए या तो सरकार हर काम करे, हर बिजनेस सरकार करे, लेकिन जहां पे प्राइवेट सेक्टर वगैरह का कहीं भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन है, तो सरकार का काम मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू ही प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी हो सकती है। ये हम विश्वास करते हैं, ये मैं बोल रहा हूं, आप कुछ भी कहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, चाहे आप कितना ही हमें कह दीजिए, हम क्रोनी सोशलिस्ट नहीं है। हम मानते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और उद्योगपति भी देश की अर्थव्यवस्था में उतने ही ईमानदारी से, उतने ही अच्छे ढंग से, उतनी आवश्यकता से अपना काम कर रहे हैं। आप उन्हें चोर, उचक्के या कांग्रेसी बोलते होंगे, हम उन्हें ये मानने को तैयार नहीं है। उनका भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रोल है। अगर वो अर्थार्जन नहीं करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था कहीं नहीं जाएगी। आप आज कृषि क्षेत्र को सब्सिडी मिलती है, एग्रीकल्चर इनकम उनका कंप्लीटली एग्जम्प्ट है, उनको डायरेक्ट फंड ट्रांसफर 75,000 करोड़ का होता है, 13 लाख करोड़ का एनुअल क्रेडिट उनको अवेलेबल होता है। इंटरेस्ट सबवर्जन 3 लाख करोड़ का इंटरेस्ट एनुअल सबवर्जन डिस्काउंटेड रेट पे केंद्र सरकार उन्हें देती है। एमएसपी पे 4 लाख करोड़ का हर साल प्रोक्योरमेंट होता है। और फिर आप ये विक्टिम का कार्ड खेलते हो। मैं मानता हूं किसानों की हालत खराब है, लेकिन इस ढंग का विक्टिम का कार्ड और खेलना कहां से जायज है? वो भी देश की अर्थव्यवस्था को, कानून व्यवस्था को सबवर्ट करके कि हम सड़कों पे कानून बनाएंगे, जो एक वैलिड प्रक्रिया के थ्रू पार्लियामेंट में बना हुआ पास कानून। Okay. इस तरह All से right. देश All right. चलते All right. हैं All क्या? right. All right. Now I'm going to stop you, Mr. Agarwal, because we have to rebut what you have said. I've very carefully taken down what you have said. You did point out multiple times that in the APMC system right now, the middlemen are making crores and crores of profit. The farmers are not getting अरबों में, नॉट करोड़, अरबों में। 6,000 करोड़ का तो पंजाब में केवल फीस उनको जाती है। मुझे बोलने दीजिए। और basically the farmers are not making enough money and the citizens are having to pay too much for food. But there is no guarantee that this will be any different in the private sector mandis, where there are no checks and balances at all. Effectively, the government checks and balances that already exist in the APMC has not been able to manage the middlemen and the abuse of the farmers.
How are we going to manage it in the private sector where there are no checks and balances? Point number one. Point number two, you have not addressed what Deepak brought up about doubling farmers' incomes, which was a promise made by the government. ये लंबा सब्जेक्ट है, मैं उस पे बोलता तो अभी आधी घंटा आपका और लग जाता. ठीक है. आपने समय नहीं दिया, मैं उस पे भी बोल दूंगा. You've said you are not a crony socialist, but there has also been a question of crony capitalist, and why the private sector here is being handed power over these markets without any checks and balances. And in the spirit of the law that was written, even I must accept that it was not written in the favor of, it seemed very sharply in the favor of the private sector. But we have changed that, na? Amended kar You've offered to change it. You've offered to change it. The other thing that you did we have agreed to those were the shortcomings. We have agreed. The other thing you brought up was monopolies. Now I'm reading an article from the Business Standard. This is February in 2019. I'm sorry. Where it's an article about a company called Adani Logistics. Now, Adani Logistics acquired a company called Adani Agri Logistics. Adani Agri Logistics was worth 2 years ago 1,662 crore rupees, and it controlled 45% of the agri storage, silo, and cold storage facilities in our country. Now, I don't know how much that has changed since then, but if you're talking about monopolies of certain companies, and you said that nobody should have a monopoly on anything, then in this case, is there a monopoly here in this particular sector? And the government has not adequately answered whether or not Adani has been given any contracts and how this will benefit a company like Adani. You also said that the farmers cannot make laws on the street. आप सड़क पे कानून नहीं बना सकते, ये पार्लियामेंट से आया हुआ कानून है. बट हमें अपने दर्शकों को ये भी याद दिलानी चाहिए कि ये जो कानून जब पार्लियामेंट पे पास हुई थी, तब ऑपोजिशन बाहर खड़ी थी. The speaker was accused of not following the rules. They passed they passed a division vote while nobody was in their seats. There was a serious problem without any discussion, without referring it to a committee, without any proper method. It was passed in Parliament in a special COVID session of Parliament, where instead of addressing COVID, you passed these laws. And now when we could have addressed it in the winter session, you've cancelled the Parliament. So let's also be honest, Mr. Agarwal, about the fact that the government's methods of passing these laws have not been proper. And so, yes, I agree, we can criticize the farmers for, for blocking the roads, but the government's methods are not following the rules either. So I don't think that's a very strong leg to stand on. So do you want to respond to how can you assure these farmers that the private sector is not going to make money and take advantage of them? अभी मैम अभी जो मंडियों में काम कर रहे हैं एपीएमसी के अंदर आड़ती है, वो प्राइवेट सेक्टर नहीं है क्या? देखिए, मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में बात कर रही हूँ. हाँ, तो अब आपने अडानी की बात करी है, रिलायंस की बात आप भूल गए बोलना. और तो मैं ये बता दूं कि अगर ये मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस को रोक के आशंका करना है, तो डू यू वांट अस टू थ्रो आउट अडानी एंड रिलायंस फ्रॉम द कंट्री? No. See, Mr. Agarwal, it's not a question of throwing out. Let me build. नहीं, मैं बता रहा हूँ. आज की डेट में, हाँ, तो चेक्स एंड व्हाई डू वी हैव अ कमीशन, मोनोपोलिस्टिक कमीशन? उसका क्या रोल है? कंपटीशन कमीशन जो है, अगर मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस करेगा कोई, सुनिए, आप कर सकता है, मैं तो कह रहा हूं कर सकता है, अडानी कर सकता है, तो फिर तब आप आंदोलन करना ना. हम कहाँ जा रहे हैं? आपका कहना है कि किसान अभी कंपटीशन कमीशन के पास जाके कंप्लेंट फाइल करें? अरे नहीं, सरकार क्यों नहीं? अरे सरकारों को आज भी बताओ, यहाँ पे देश में 60% किसान देश के में जनसंख्या है. हम इलेक्शन जीतते हैं ना, हम भी पॉलिटिक्स करते हैं ना, हमें भी इलेक्शन में वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? देश की 60% जनता को नाराज करके क्या हम इलेक्शन जीतेंगे क्या? नहीं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स में डोनेशन पाके तो आप इलेक्शन जीत सकते हैं. देखो, ये किसानों की समस्या, अगर आप अलग अलग विषय लाओगे तो फिर हर के लिए आधी घंटा का चर्चा. नहीं, my question to you was very simple. किसानों की बात मैंने बोला नहीं, आपका प्रश्न था नहीं, आपका मेरा प्रश्न ये था कि हम किसानों की चिंता कैसे करेंगे, उसका मैंने आपको क्रक्स बताया है. किसानों के वोट की हमें भी चिंता है, और अगर हमें ये नहीं विश्वास होता कि ये किसानों
हो सकता है हमारी गलत विश्वास हो, लेकिन हमारे पास भी लॉजिक है, डिस्कशन है। नहीं, आपको मैं पूरा बात डेमोक्रेसी ऐसे फंक्शन नहीं करती मिस्टर अग्रवाल, दैट यू अरे पास अ लॉ टू डेमोक्रेसी वेट फॉर द ऐसे नेक्स्ट थोड़ी होता इलेक्शन। है जिसको नहीं, आप डेमोक्रेसी में 48%। चेक्स एंड बैलेंसेस यही होते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो अभी हो रहा है, तो वो तो हम करने दे रहे हैं, हम तो मना नहीं कर जो रहे। अभी हो रहा है, और मीडिया जो हमारे सामने हो रही है अभी, बस हम तो उसको पूरी तरह से स्वागत है, करिए आंदोलन, लेकिन ये थोड़ी कि हमारी बात नहीं मानोगे तो अब ये गलत है। हाँ, आपकी लेकिन बात आप ही नहीं सुनने को मान रहे हो ना, तैयार है। so there's a 50-50 नहीं थी, नहीं, आप ये भी क्या नहीं बात मान है? रहे हो, वो भी नहीं मान अगर रहे हैं। आप ये आप कल कहो कि भाई ये लॉ खत्म कर दो, जरूरी थोड़ी सरकार सारी चीजें मान लेगी। तो मुझे वो एक चीज की आप फिर से जवाब दे दीजिए आप मुझे। एनवायरमेंट की बात करते हो, आप How राइट will, टू। नहीं, एक मिनट, how will the government ensure that the private sector mandis will not take advantage of our farmers? हाँ, इसका जो मैं आप आपको बोल रहे हैं अभी कि एपीएमसी में हो रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं हो? नहीं नहीं, अगर प्राइवेट मंडियां किसानों को लूटेंगी, नई मंडियां आती है, एक तो हमने उसको स्टेट को रेगुलेशन का पूरा प्रोविजन, किसानों की बात को एग्री कर लिया कि उनका रजिस्ट्रेशन और उसमें काम करने वालों का रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दें, ये हमने एग्री कर लिया ना। ये कमी आपने बताई वो बिल्कुल हमने एक्सेप्ट की है कि वो थी कि प्राइवेट मंडीज वर गेटिंग अ नॉट ए लेवल प्लेइंग, दे वर गेटिंग अ बेनिफिशियल पोजीशन, तो वो हमने एक्सेप्ट करके उसको अमेंडमेंट के लिए तैयार हो गए, फिर तो नहीं होना। दूसरी बात यह है कि किसानों के पास जरूरी थोड़ी कि प्राइवेट मंडी में जाए, एपीएमसी खत्म जब नहीं कर रहे, वर्तमान स्ट्रक्चर तो चलता रहेगा, तो वो चाहेंगे तो वो उसमें बेचे ना, उनको कौन कह रहा है कि प्राइवेट मंडी में बेचो? सरकार अपना एश्योरेंस। दीपक बाबा को जवाब दे दीजिए। इफेक्टिवली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट अगर आपको प्राइवेट में नहीं जाना है, आप एपीएमसी में जाओ, लेकिन अभी अभी आपने कहा कि एपीएमसी में किसान लूट रहे हैं, तो उनको वही तो मैं कह रहा हूं, एक कंपटीशन इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात ये हो गई अरे तो फिर गोपाल तो अग्रवाल, नहीं मैम, इसका मतलब तो ये हुआ कि 60 साल के। नहीं, एक चीज मैं और कह देना चाहता हूं यहाँ पे कि किसानों के 60-70 साल की समस्याएं इस देश में जो हैं, ये 3 कानून उनके सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, ये हम नहीं आपसे कह रहे। ये 3 कानून उन सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे, बहुत सारी समस्याएं इनके बाद भी रहेंगी, उनके लिए और चीजें करनी पड़ेंगी, उनके लिए और बदलाव करने पड़ेंगे, उनके लिए और सपोर्ट। बड़े पेशेंटली सुन रहे हैं। दीपक जी, गो अहेड, योर रिबैटल। जी, मुझे बीच में ना टोका जाए तो ये जो बात थी, जो 85% बीच वाले अड़ती ले जाते हैं, मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूंगा। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिचौलिया जब मार्केट उपभोक्ता तक सामान जाता है तो वो महंगा होता है और उसमें मार्जिन बिचौलिया कमाता है। लेकिन किसी छोटे बिचौलियों को हटा के आप बड़ा बिचौलिया ला रहे हैं तो खतरा और बढ़ जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप बात हटा नहीं करते रहे हैं, दीपक जी, आप सुनिए बार-बार सर, हटाने मेरी की बात पूरी होने दीजिए ना, मेरी बात बात पूरी होने दीजिए प्लीज। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि नहीं हम ये जब लेके आ रहे हैं, रिलायंस, अडानी, बड़े प्लेयर्स आएंगे, किसानों को फायदा होगा। देखिए, आज की व्यवस्था में भी बड़े प्लेयर को खरीदने के लिए कोई मनाही नहीं है, वो मंडी जाके खरीद सकता है। नहीं जब आप खरीद 50, सकता। सुनिए अरे मेरी मैं बात तो खुद सुनिए नहीं, सर, मेरी बात तो सुनिए ना, आप मेरी बात तो पूरी सुनिए। अरे मैं खुद देखा हुआ, नहीं खरीद सकते मैम, ये सर गलत लॉ को गलत गोपाल बोल जी, रहे हैं। आप बता दीजिएगा, आप बता दीजिएगा जहां मैं गलत बोलूं, आप बता दीजिएगा। मैं ये यही कह रहा हूं, गलत बोल रहे हैं, बस हाँ इतना ठीक है, बोल रहा हूँ। मैं आगे, आज की मैं डेट में मेरी मंडियों अगली के बात तो अलावा नहीं सुनेंगे सकते। आप, हो सकता है उसमें और काम की बात आपको मिल जाए गलत बताने को। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ, इसमें ऐड कर रहा हूँ कि जब ये तीनों कानून एक पैकेज में आते हैं, देखिए कोई बड़ा प्लेयर एमएसपी पे या एमएसपी मार्केट प्राइस पे खरीदेगा, उस टाइम भी 85% मार्जिन उसको जाएगा। ये डेडली कॉम्बिनेशन इसलिए बन जाता है कि आपको जो जमाखोरी का अधिकार है वो मिलता है इस कानून के थ्रू। आप कितनी ही क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। इससे होगा क्या कि 85% मार्जिन ने जो जमाखोरी या बीच का पैसा है वो सिर्फ उतना नहीं रहेगा, बल्कि उसमें और शेयर ऐड होगा, जिससे कि उपभोक्ता जो है देश का वो पिसेगा। जब मेरे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट और साथ में मेरे पास अपनी प्राइवेट मंडी का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये पिक्चर आप देखते हैं, बड़े बड़े साइलोज हैं, आपने खरीदा, साइलोज में डाला, फिर मैं मार्केट को कंट्रोल करने लगता हूँ, कम्युनिटीज की लेवल्स को अपने हिसाब से ऊपर नीचे करने लगता हूँ। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, ये हो क्यों रहा है?
यदि आपको सिर्फ खरीदना है, देखिए एग्रो बिजनेस की कंपनियां बहुत सालों से प्रोडक्ट बनाती रही हैं, प्रोसेसिंग प्लांट्स होते रहे हैं, ऐसा नहीं है उनके खरीदने पे कोई लिमिट है, उनकी स्टोरेज पे लिमिट है। आप कोई चीज स्टोर कर लेंगे दैट इज कम्स अंडर एनी लिमिट, जो कि हमारा एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट है। लेकिन जब आप इसको खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, ऐसा तो कितने सालों से हमारे यहाँ होता आया है। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज है, ये बनाया ही इसलिए गया है कि इससे होगा क्या कि ये जो 85% मार्जिन की बार बार आप बात कर रहे हैं, ये भी कंपनीज को जाएगा, साथ में जो उपभोक्ता की जेब से जो पैसा जाएगा वो भी बढ़ने वाला है। तो ये जो 85% मार्जिन की बात कर रहे हैं, 85% जो अनाज कम पैसे पे खरीदा जाता है और जो बेचा जाएगा वो उससे और ज्यादा पे बेचा जाएगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मुनाफा होने वाला है इस फील्ड में। और यदि आपको लगता है कि पहले की व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ नहीं थी और आने वाली व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ नहीं होगी, तो कौन सी कंपनियां ऐसी रही हैं जो पहले वाले सिस्टम में इन्वेस्ट क्यों नहीं करने आई। आज आप जो, मैं आपको छठा पॉइंट बताता हूं, जो कि आपका एपीएमसी की बात, जो छठा पॉइंट उसमें क्लोज लिखा है, उसमें लिखा है स्पष्ट रूप से, ये इसलिए कानून बनाए जा रहे हैं क्योंकि देश को इस फील्ड की इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट प्लेयर आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग यहाँ पर मंडी के साथ साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साइलोज भी हैं। तो मेरा जो डाउट है कि सिर्फ किसान नहीं, आने वाले समय में देश का उपभोक्ता, मिडल क्लास जो लेवल की फैमिलीज हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं, वो भी इसका जाके हर्जाना भुगतने वाले हैं। और जो बात आती है लोकतंत्र में, आप कहते हैं सड़क पे कानून बनाएंगे, जी नहीं, हम सड़क पे कानून नहीं बना रहे हैं। आपकी सरकार, जितने भी सांसद हैं, एमएलएज हैं, वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमारी बात को सुनना बंद कर दिया है, इसलिए किसान सड़क पे है। सड़क पे आके कानून नहीं बनने वाले हैं, कानून तो आप लोग ही बनाएंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही बनाएंगे। लेकिन हर चीज को आप सिर्फ एक तराजू में तोल देते हैं कि हमें तो चुनाव भी लड़ना है, लोकतंत्र है, चुनाव तो लड़ना है। और इसके बाद आप कहते हैं कि हम तो चुनाव जीत के आए हैं। ठीक है, चुनाव जीत के आए हैं, लेकिन आपको ऐसा तो नहीं है ना। रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग क्या होता है कि उसमें एक फीडबैक मैकेनिज्म रियल टाइम में चलता रहता है। मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव है, मेरा एमएलए एमपी है, वो संसद में तो रिपोर्ट करेगा, उसके लिए तो दायित्व है ही है। साथ में जो उसके एरिया है, उसकी जो विधानसभा है, उसकी जो लोकसभा है, उसके लोगों के लिए भी वो उत्तरदायी है। तो ये जो लोकतंत्र का सबसे अच्छा सिद्धांत है कि फीडबैक का मैकेनिज्म सिर्फ 5 साल में नहीं आएगा, ये हर दिन आएगा, हर पल आएगा, हर घंटे आएगा, हर सेशन के बाद आएगा। तो ये फीडबैक का मैकेनिज्म हमें लोकतंत्र ने दिया है। जब फीडबैक के मैकेनिज्म में आप क्रॉस लगा देते हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे होते हैं, तो आंदोलन होता है। तो आंदोलन I सिर्फ also want to इसलिए है। point out, yes, I also want to point out one more thing before Mr. Agarwal picks up and starts, giving his side of this thing. If while he is arguing that the farmers are putting pressure and they are not listening to the government that's doing parliamentary work, I also want to point out to him that 4 allies of the BJP, the Akali Dal, the JJP, the RLP, and the JDU, which just won an election in Bihar, have all come out and criticized the government's handling of this problem and the 3 laws that have been passed. And of course, the AIADMK has now distanced itself as well. So it's not, I mean, the government here is standing completely alone in terms of its digging its heels in with this one particular matter. But this is a very good point brought up by by Deepak ji. Mr. Agarwal, hoarding laws. To explain to our audience, just 1 second, I'll explain to our audience. So traders of agricultural produce up till now were not allowed, even the ones who were given, permission to trade in the buy from the APMC, they're not allowed to hoard. They cannot fill godowns and godowns of onions, because when you do that, what you'll do is you create a false scarcity. Remember your economics class. You create a false shortage of onions in the market and the price will go up. Then you can open up your silo and drop the price at will. So you are able to manipulate the price, and both the farmer and the end consumer will suffer, which is why there are strict laws. There were strict laws in our country prohibiting any private sector person from hoarding or storage of agricultural produce at large scale. These laws have been completely removed by this government as of now. Mr. Agarwal, could you explain to us the logic behind allowing the private sector to store any amount of agricultural produce? What was the thought process behind it? 2 चीजें हैं इसमें। जी. एक तो मैं असेंशियल कमोडिटीज एक्ट की लिमिट हमने खत्म की। एक बार बीच में दीपक जी बोल भी गए कि ये जो लिमिट है ये रेस्ट्रिक्ट करती है
आड़तियों को, मिडिलमैन को। मैं अपने तरफ से बता दूं, मैं स्पष्ट कर दूं, 1955 में ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बना था, जिसमें लिमिट सेट की गई थी अलग अलग तरह की। उसको बाद में रिवाइज किया एक दो बार, लेकिन यह काफी ड्रैकोनियन लॉ था और उस वक्त शॉर्टेजेस थी फूड कमोडिटीज की। आज किसानों की समस्या है सरप्लस प्रोडक्शन की। आपने चाहे आपने पिक्चर बहुत दिखाते हैं, आप दिखाइए सड़कों पे अनाज सड़ रहा है। क्यों सड़ रहा है? फेंका जा रहा है, आलू प्याज तक फेंके जा रहे हैं। मैं आलू के कोल्ड स्टोरेज वालों को, कईयों को जानता हूं, इतना प्रोडक्शन होता है, उनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। इंडिया नीड्स लॉट ऑफ स्टोरेज, वेयर हाउसिंग कैपेसिटी, कोल्ड स्टोरेज, लार्ज वेयर हाउसेस। और वह वेयर हाउस बनाएगा कौन? अगर उसको उसमें स्टोर करने की लिमिट ही नहीं रखोगे तो वो वेयर हाउस कौन बनाएगा? और जो सरप्लस है उसको कौन स्टोरेज करेगा? तो यह तो सबसे जरूरी है। किसी किसान ने इस चीज को ऑब्जेक्ट नहीं किया है कि 1955 के जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन का शॉर्टेजेस था, RL 480 को भूल गए आप? क्या घटिया क्वालिटी के गेहूं हम लोग खाते थे विदेश से इंपोर्ट करके। आज हमारे पास गेहूं सरप्लस होता है, चावल सरप्लस होता है। कहाँ स्टोरेज करेंगे? उसके स्टोरेज के लिए और प्राइवेट इन्वेस्टर कैसे करेगा अगर उसको स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं आप अलाउ करोगे? उसको जेल में डाल दोगे क्या? तो ये तो जरूरी है, ये तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में डायरेक्टर था, हम लोगों ने एक स्कीम लॉन्च की थी, सिलोस की आपने बात करी, प्राइवेट की। हमने किसानों को ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट की स्कीम देख लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में। जिस किसान के पास सड़कों के किनारे जमीन है वह FCI और वेयर हाउस के साथ एग्रीमेंट करे, बैंक उसकी जमीन पे वह अपना वेयर हाउस बनाए, बैंक ऑफ बड़ौदा उसको फाइनेंस करेगा और जो रेंट आएगा FCI रेंट देगा। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हमने फ्लोट किया था। 2-2, 3-3 एकड़, 2-2, 3-3 करोड़ में किसानों की जमीनें थी, उस पर साइलोस बनाने की पूरी स्कीम चलाई थी। किसानों को वैकल्पिक ऐसी व्यवस्थाएं, मार्केटिंग, स्टोरेज, उसकी जमीन पे और फूड प्रोसेसिंग, एग्रो इंडस्ट्री लगाने, इसके बगैर कैसे उनका विकास होगा? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आप केवल पंजाब या हरियाणा के किसान जिनका की एनुअल इनकम 2 लाख रुपया एवरेज इनकम है और बाहर के बाहरी प्रदेशों में 50,000 40,000 है, उनको एक लॉ से तो नहीं डील कर सकते ना। लेकिन आप ये मान सकते हो, जैसे आप कह रहे हैं, एक मिनट मेरी पूरी बात होने दो। No, allow me. You're absolutely right on this one point, that what fits the farmers of Punjab and Haryana doesn't necessarily fit the farmers of Bihar or Kerala or Karnataka or Andhra Pradesh, Assam, Jharkhand, which is precisely why, Mr. Agarwal, farming and agriculture is a state subject. Why is the government making one law to fit everybody? If you are accepting that it doesn't fit. We have given the option if don't implement this, regulate these private mandis. Don't give registration to them. Don't allow people to get registration into them. If you want to APMC, if you are asking 6% fees, ask them to pay 10%. They will not set up. Let us see. What is the problem? अब पंजाब हरियाणा में मत करो नए प्राइवेट मंडी, आप 10% फीस लगा दो, आप रजिस्ट्रेशन की परमिशन मत दो, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन के कॉम्प्लिकेशंस लगा दो। अडानी को मत दो परमिशन, उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोक्योरमेंट की मत दो, अडानी की कंपनी को रजिस्ट्रेशन। अरे ऑप्शन को कैसे आप खिलाफ कह सकते हो? मुझे तो बेसिक नहीं समझ आ रहा आप चीजों को। आपको कौन कह रहा है कि प्राइवेट मंडी में जाओ, अडानी को उसमें रजिस्टर करो, अडानी को 3% पे मंडी चलाने दो, आप 10% लगा दो ना 6% की जगह पे। It's a fair answer. अरे ये ऑप्शन इतने मतलब बेसिक, मतलब आप ये लोग सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल बेवकूफ लोग बैठे हैं क्या यहाँ? Do you want to respond to that? कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये ताकत है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है। देखिए, मत दो ना, अडानी को मत दो रजिस्ट्रेशन, उसकी कंपनी को मत कराओ। ये सारे आप रिलायंस के सारे वो जो टावर से हटा दो पंजाब से। देखिए, actually that's the other point I was going to come to before we run out of time. दीपक जी, इसका भी जवाब दे दीजिए। मैं जवाब टावर तोड़ी जा रही है। जी मैं ना नहीं आप उसका ही जवाब देने दो कि प्राइवेट मंडी में जो है उसी का एक ही बात का जवाब दे दे। हम आपके सामने आज नेगोशिएट करने को तैयार हैं।
कि जब आपको ऑप्शन दे रहे हैं तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? देखिए यहाँ पे गोपाल जी और मैं कोई ऑथराइज पर्सन नहीं है इसको नेगोशिएट करके और आज नहीं इसका नहीं, फाइनल ऑथराइज की डिसीजन ले बात ले। क्या है, हम पूरा दूसरा आपके साथ नहीं खड़े नहीं हो जाएंगे, मैं सिर्फ आपके साथ। आपकी बात मैं का आपके जवाब दे साथ खड़ा हूंगा, आप इस बात का मुझे जवाब दे दो। कल आ, अगर मैं आपके साथ आंदोलन में आ जाऊंगा, जी जी बिल्कुल दो ठीक है। जवाब। मैं मेरी बात तो सुनिए। अभी 4 जनवरी की जो टॉक हुई है उसमें लास्ट में ये मंत्री स्तरीय जो कमेटी थी उसने लास्ट में बोला है कि हम ये सारा डिस्कशन हायर अप्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो मैं और गोपाल जी तो कहीं उस लेवल पे है ही नहीं कि हम लोग कोई डिस्कशन करके सॉल्यूशन यहाँ लिख देंगे। दूसरी नहीं, बात, अपनी ओपिनियन तो नहीं दे सकते हैं मैं ना। ओपिनियन दे रहे हैं इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं सर, हम नहीं, कोई फाइनल नहीं ओपिनियन करने यहाँ नहीं वाले दे हैं। रहे, सरकार को भी देंगे, देखिए ऐसा थोड़ी है कि सरकार को आपने नहीं देंगे। आपने आपने एक बात कही कि प्राइवेट मंडियां आ जाएं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, आपने कहा कि कंपटीशन उन पे से। हाँ कंपटीशन ठीक है, आपने कहा उस पे 10%, मैं तो कहता हूँ 60% फीस लगा दीजिए। लेकिन आप मैं आपसे लगाओगे बात ना, मैं नहीं पंजाब नहीं नहीं हाँ लगाएगा, जी, सुनिए थोड़ी ना उनको लगाएगा। बोलने सुनिए दीजिए ना, गोपाल जी सुनिए उनको ना, बोलने दीजिए। मैं आपसे बात करता हूँ कि आपने खुद कहा देश में 7,000 मंडियां हैं और जरूरत हमारे को 35,000 मंडियों की है। तो ये जो 25,000 मंडियां हैं ये ऐसे स्टेट्स में हैं जहां सरकारी मंडी है ही नहीं। जब आप प्राइवेट मंडी ले आएंगे वहां पे चाहे फीस कितनी ही लग जाए, मैं आपको बिहार का एग्जांपल देता हूँ। बिहार में जो चावल बिकता है वो 1100 रुपये बिकता है और वही चावल किसी दूसरे स्टेट में 1600 रुपये बिकता है। तो प्राइवेट मंडी वाला जाके प्राइवेट मंडी सेट कर ले, चाहे कितना प्रतिशत लगा ले, वो मार्केट में पैसा कमाने के लिए आता है कोई भी प्राइवेट वाला। दूसरा आपने कहा कि सरप्लस अनाज हो गया, वो सड़कों पे पड़ा है, कोल्ड स्टोरेज बनना चाहिए, सारी सारी बातें आपकी ठीक हैं, उसको बचाना चाहिए, देश में होना चाहिए। लेकिन ये जिम्मेवारी कहीं न कहीं सरकार की नहीं बनती है कि आप उन चीज़ों का ख़्याल रखें, वो क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल उसी दूसरा का जब ख्याल आप रख के देखिए किया देखिए है। नहीं, 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 उसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स लाने की ज़्यादा ज़रूरत जो आप कह रहे हैं कि कंपनी कोल्ड स्टोरेज बना लेगी। देखिए, एक आपकी क्लॉज़ ये है जमाखोरी वाला जो मैं एसेंशियल कमोडिटी वाला कि हमने अपना नया नाम दिया है उसको जमाखोरी कानून। जमाखोरी के लिए जो भी रूल्स हैं उसको हटाओ कानून। उसमें आपने लिखा है कि कंपनी के पास यदि एक्सपोर्ट लाइसेंस है तो वो कितना भी स्टोरेज कर सकती है। तो जो सरप्लस अनाज है जब वो स्टोर हो जाएगा कंपनी के लिए, कंपनी कभी देश के लिए काम नहीं करेगी। कोई भी कंपनी है वो अपनी प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करेगी। उसके लिए उसको जो मार्केट सुटेबल लगेगा, जहाँ उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पे अपना माल भेजेगी। जो बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इससे डिमांड एंड सप्लाई के रेशियोज़ पे फ़र्क पड़ता है। देश में किसी चीज़ की कमी होगी तो यहाँ भी प्राइस बढ़ेंगे उस चीज़ के। तो अल्टीमेटली उपभोक्ता भी उसमें फँसेगा। तो जहाँ तक बात आती है कि आपने कह दिया स्टेट मैटर है, सरकार जो राज्य सरकार जो कर लें वो कर लें, फिर इन कानूनों को लाने की ज़रूरत क्या है? आप इसको रद्द कर दीजिए, जो करना होगा। अभी भी सरकारें कर सकती हैं, राज्य सरकारें तो वो कर लेंगी। तो हमारा मुद्दा स्पष्ट है, हमें ये कानून रद्द इसलिए चाहिए कि तीनों कानून मिलके एक बहुत ही कंबाइंड पैकेज बनाते हैं, जो कि प्रॉफिट मेकिंग का पैकेज है और ये देश के लिए नहीं है, ये किसान के लिए नहीं है, ये कंपनीज़ के लिए है। तो ठीक है। हमारा जो व्यू है वो बिल्कुल स्पष्ट है। कोल्ड स्टोरेज होंगे, एक्सपोर्ट होगा, सब इकट्ठा होगा, प्राइस किसान को कम मिलेगा, उपभोक्ता को ज़्यादा में बेचा जाएगा और जो सारा सिस्टम है, वो जो अभी चल रहा है, उससे भी खराब होने वाला है। मिस्टर अग्रवाल? नहीं, मैंने को ज्यादा कुछ कहना नहीं, मैंने बहुत सीधे कह दिए मेरे हिसाब से। और ये आशंकाओं पे बेस्ड इनका ज्यादा है और ये इस बात से एजम्पशन के साथ चल रहा है कि प्राइवेट जो है वो चोर उचक्के ही होते हैं। मेरा इस बात से नहीं, कोई नहीं, ये नहीं कह नहीं रहे। नो, नहीं नहीं, No, मैं but इस Mr. बात से ये Agarwal, नहीं। कोई okay, बात so थोड़ी है। let me step in here, Mr. Agarwal, and I want to tell you this as someone who is an नहीं, entrepreneur मैं who's तो कह trying रहा to हूँ कि start business. प्राइवेट The इन्वेस्टमेंट को government अट्रैक्ट looks करने at के the लिए ही है ये। okay, है, okay, उसको अट्रैक्ट करने के लिए है। no, सरकार no, अगर okay, मंडियां बना सकती थी तो बना देती ना, हमें ही क्यों, फिर तो कांग्रेस से लड़ते ना ये। नहीं हम नहीं, कांग्रेस की तो बात ही नहीं है because Congress नहीं is तो not in 70 our साल में radar. They 70 don't साल में have. 7,000 मंडियां बनी है, तो सर हमारा तो 1,000 का ही कांग्रेस रेशो आएगा। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया हम तो इसीलिए 7 उनको साल ही 40 पे है लाके ना। रोक दिया है। नहीं 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 नहीं, तो आपने 65 साल बाद क्यों जगे कांग्रेस के खिलाफ? नहीं कांग्रेस ऐसा ने मतलब नहीं पीछे ये Mr. Agarwal, नहीं you तो know, फिर क्या बात no, हुई? no, one second, I'm नहीं going to stop देखिए, both ये of you. बात तो मैं नहीं, मान Mr. रहा हूँ कि Agarwal, stop. प्राइवेट This इन्वेस्टमेंट को प्राइवेट political इन्वेस्टमेंट को rhetoric has no place on my show, Mr. नहीं Agarwal. नहीं You can't say that प्राइवेट the Congress ran this country. What happened to नहीं नहीं Mr. नहीं, आप Vajpayee's वो तो government? What आपके happened to Mr. काउंटर, मैं Devegowda's नहीं कह government? रहा। No, मैं no. कह रहा हूँ कि Let's actually प्राइवेट मुद्दे इन्वेस्टमेंट पे बात अट्रैक्ट आइए. होगा। Okay, हाँ, one second.
one second. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए है ये मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ. Mr. Agarwal, I have just one question for you. You talked about being a capitalist, being right of center. You talked about believing in market policies and market movement, right? And I agree with you. The simple theoretic question is this. While public sector organizations or PSUs, like an SBI, for example, were created to serve the poorer public, they are also companies that function in the market. Private sector has only one responsibility: to reward its shareholders and to create a profit. In fact, the only social responsibility that the private sector has, and this is completely as per the law, is the corporate social responsibility. 2% of its profits it has to do every year. Why would the private sector look after our farmers if the public sector has not been able to look after our farmers? Is the fundamental question, right? So we're not saying that the private sector are short. I'm saying that their motivation is different. And so when the government writes 3 or 4 laws, which put together, and you look at the larger picture, looks like it is favoring the private sector, why would the farmers build that trust in you again? And why should the private sector look at the private sector hospitals, look at private sector schools, look at private sector airlines? Everywhere you've had issues of private sector in pricing, issues of private sector in profiteering, issues of private sector in competition. Why would the private sector behave differently when it comes to our farmers? तो फिर you are saying that we should completely move to a communist country where everything is No, I'm saying you should create checks and balances. That is your job. मैडम दिस इज इकोनॉमिक क्वेश्चन. नहीं गोपाल जी बिल्कुल बाइनरी में मत चलिए ना, 0-1 क्यों कर रहे हैं आप? नहीं तो हम all of the sectors that I called out, all the sectors that I called we have out, mixed economy ना, education, health, all the other sectors, the government is in the job of regulation. Your job is to create checks and balances to make sure that the private sector doesn't have unlimited, and even wherever there is a problem, we've seen in the last 1 year with hospitals, the government has stepped in. My problem is with the clean chit that you are cutting for these private sector in the area of farm laws. No. I'm saying it will be a mixed economy, both in agriculture sector. We are working on FPOs also. We have seen Amul is a successful model. Amul is a cooperative. It's not private sector. Do not confuse the two things. मैं यही तो कह रहा हूँ, FPO is the model which we want to promote. Farmers Producer Organization, 10,000 FPOs we want to promote. आप मेरी बात सुन लीजिए. आप कह रहे हो प्रॉफिट, आप इकोनॉमिक डिस्कशन फिर करना. प्रॉफिट का मतलब क्या है? आपने देखा प्रॉफिट का मतलब क्या है? If you do not care for the stakeholders, and society is a stakeholder in any businesses, profit means that you have to take care of the society. Okay. तो फिर आप फिलोसफी में चले जाइए, फिर मैं उस पे बात करूंगा. देखिए मैं सिर्फ I would love to though. That's a great conversation to have. We should have that conversation. Yes, go ahead. मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा. ये I don't consider profit as a bad word. No, neither do I. Go ahead. ये सिर्फ फार्मर्स नहीं, इसको दूसरे टर्म में देखें तो हम देश की 60% आबादी का हिस्सा हैं. तो ये फार्मर्स नहीं है, आपको 60% आबादी के बारे में सोचना है. आप सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, आप पॉपुलेशन की बात भी कर रहे हैं. तो दूसरी बात, जब आप बात करते हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई हम ओपिनियन देते हैं, तो आप बिल्कुल ये बाइनरी में नहीं चल सकते. ये नहीं तो फिर आप वही कर लो. नहीं हम तो बाइनरी में हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. आप बात करें ना कम्युनिस्ट हो जाएं, तो वो वाला नहीं होना चाहिए. प्राइवेट को खत्म कर दे तब कम्युनिस्ट. All right, we've run out of time, but it's obvious even from this conversation that these two sides are nowhere near agreeing with each other. I apologize for that. I work from home. Actually, the argument is that Mr. Gopal Agarwal is arguing a different philosophy of giving the private sector, and the private sector will, based on market philosophy, look after the farmers, because otherwise how will the private sector survive? Mixed. I'm not saying only private. I'm not saying ki close all government PSUs go. I'm saying mixed. Don't misunderstand. गोपाल जी, आपको BSNL का हाल नहीं पता लगा?
तो अरे मतलब मैं और आपको कैसे एयर कर इंडिया रहे का हैं? हाल से समझा दूंगा। एयर इंडिया हाल अगर आज से 10 साल पहले डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता तो आज ये बुरा हाल नहीं होता देश का। 70,000 करोड़ रुपया देश का टैक्स पेयर्स मनी खराब नहीं होता अगर तो सही टाइम पे लोगों ने तो सही हमारे डिसीजन लिया। बैंक्स में क्या हो रहा है गोपाल अग्रवाल, वो जो हमारे पंजाब पीएमसी बैंक थी हाँ, महाराष्ट्र में, what happened to that? I mean, हाँ we तो can, this is a much longer argument of what happens with these in these sectors where the government also competes with the private sector, and which of these two finally survive, and where the corruption actually starts to build in. But we don't have time for that, and maybe we should have a larger conversation on the different philosophies of economics, because it's a great conversation and it's a learning conversation for young people as well. But for now, it does seem like the two sides are not meeting, because on one side the farmers are saying repeal the laws, we are not here to discuss point by point. The government on the other side is saying, listen, these laws are good, please look at them point to point. It is raining. Over 40 farmers have lost their lives since this protest began. This is no longer about, I mean, there was a time when we were talking about, oh, dekho pizza ban raha hai yahan pe. This is not that fun conversation anymore. These are people now who are at health risk at a time when the whole world is facing a new wave of COVID. This is something that needs to be handled very quickly and very seriously, and needs to be sorted out immediately. We do hope that the two sides will reach an understanding, simply for the safety and the betterment of our farmers. Like I keep saying, I'm the daughter of a farmer. This country was built on Jai Jawan, Jai Kisan. That second half of that sentence should never be forgotten. Thank you to both of my guests for a very lively debate, and thanks to the audience. Good night. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।